Hello students, today we are going to see non-hormonal long-active pills. Before this we have completed hormonal methods and natural methods of contraceptives. Last lecture we have seen natural methods of contraception. So hormonal methods में नॉन हार्मोनल लॉन्ग एक्टिंग पिल इसे हम देखने जा रहे हैं जो गवर्नमेंट सप्लाई में छाया ट्रेड नेम से अवेलेबल होती है. So it contains methoxychromone hydrochloride, that is सेंटक्रोमेन और सहेली भी ट्रेड नेम से इसे मार्केट में पाया जाता है. दैट इज methoxychromone हाइड्रोक्लोराइड 30 mg. It is non-steroidal non-hormonal contraceptive pill. Previously we have seen lots of side effects of hormonal contraceptive pills. So government have launched in their program this chaya. This contraceptive pill is safe and effective also. It has minimum side effects. So how should it be used? For 1 month, for first 3 months, it should be used twice a week on the fixed days, 2 days of the week. इसे लेना होता है पहले 3 महीने तक, हफ्ते में 2 बार. देन once a week. After 3 months, it should be taken once a week on fixed day and fixed time. एंड इट शुड बी स्टार्टेड फर्स्ट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मेंसेस. मेंसेस के पहले दिन से इसको स्टार्ट करना होता है. हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ सेंटक्रोमेन और छाया tablet that is available in government supply, non-steroidal oral contraceptive. So how it works? So इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है? इट इज़ अ पोटेंट एंटी एस्ट्रोजन कंपाउंड. जो एस्ट्रोजन की जो एक्टिविटी होती है बॉडी में, जो जिसकी वजह से प्रेगनेंसी की या ओवुलेशन की सारी प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को ये हैम्पर करता है. लेकिन ये ओवुलेशन को इनहिबिट नहीं करता. इट डजंट इनहिबिट द ओवुलेशन. सो व्हाट डज इट डू? इट इंटरफियर्स विद द निडेशन विच इज एस्ट्रोजन डिपेंडेंट पोस्ट ओवुलेटरी प्रोसेस. जो ओवुलेशन होने के बाद एस्ट्रोजन डिपेंडेंट एक निडेशन की प्रोसेस होती है, उसमें ये इंटरफियर करता है. Then it induces mismatch between embryo transport and endometrial suitability. जैसा हमने इंट्रायूटराइन डिवाइसेस में और प्रोजेस्टेरॉन पिल्स में हमने देखा है कि जब स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करता है तो ये फर्टिलाइजेशन जो है ये फैलोपियन ट्यूब में अकर होता है, और वहाँ से जो फर्टिलाइज ओवम है वो एंडोमेट्रियम में आता है. एंडोमेट्रियल बेड तब तक वहाँ पर प्रिपेयर होता है और इसका इम्प्लांटेशन होता है. सो ये जो पीरियड होता है, इसका जो टाइमिंग होता है, उसमें मिसमैच क्रिएट करने का काम ये सेंट्रोमेन कंपोनेंट जो है वो करता है. So it do not have any effect on hypothalamus pituitary ovarian axis. जो हमने हार्मोनल पिल्स में देखा था उसकी जो मोड ऑफ एक्शन थी पर्टिकुलरली एस्ट्रोजन कंपोनेंट की, सो इट अफेक्ट्स द hypothalamus pituitary ovarian axis, but centromen doesn't affect it. It do not inhibit ovulation, but fertility returns after 6 months of discontinuation. It should be noted that fertility is not regained immediately after the discontinuation of this tablet. So at the time of counseling, patient should be counseled about this thing also, कि जिसकी वजह से क्या है, अगर वो पेशेंट्स क्या जनरली क्या सोचते हैं कि हमने पिल लेना बंद कर दिया तो तुरंत फर्टिलिटी रिगेन हो जाएगी, और अगर वो कुछ प्रेगनेंसी का प्लान कर रहे हैं तो वो कंटिन्यू हो जाएगा. लेकिन ये चीज़ उनको समझाना ज़रूरी है. तो प्रेगनेंसी तुरंत नहीं रहेगी और उनकी फर्टिलिटी तुरंत कंटिन्यू नहीं होगी. तो 6 months दे हैव टू वेट. So there are certain contraindications to use this tablet, that during lactation period of 6 months, it should not be used. Then the patients which are having history of hypersensitivity, they should not also be advised this tablet. Hepatic dysfunction, lung and renal diseases, and PCOD, polycystic ovarian diseases. So these conditions are contraindication indicated for using this Chaya tablet. So this was the non-hormonal contraceptive pill. Now we are going to see the terminal method of contraception.
So far, we have seen all the temporary methods of contraception. So you can revise all of them. They are temporary method. Now we are going for permanent method, that is terminal method of contraception, that is sterilization. So sterilization भी दो तरह के होते हैं. स्टरलाइजेशन जो गायनेकोलॉजी या फिर फैमिली प्लानिंग में वर्ड यूज़ किया जाता है, दैट इज़ फॉर टू फॉर द स्टरिलिटी. सो फर्टिलिटी को उसमें हैम्पर करने के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है. देयर आर टू परमानेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, वेजेक्टोमी फॉर मेल एंड ट्यूबेक्टोमी फॉर फीमेल. सो दो मेथड्स है, लेकिन दोनों ही मेथड में एक कॉमन गाइडलाइंस यहाँ पे इशू की जाती है, दैट इज़ जो मेल है उसका एज जो है वो 25 ईयर्स से कम नहीं होना चाहिए और 50 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. सो the male person should be between 25 to 50 years of age, and the age limit for female is considered 20, should not be less than 20 and should not be more than 45 years. So these are conditions. Then motivated couple must have two living children at the time of operation. Here the word used is motivated couple. So you can understand, you should remind the definition of family planning, that family planning is a way of thinking and living adopted voluntarily. Okay, so this is voluntarily method, and in the family welfare program, family welfare programs aim is to motivate people about these methods of family planning. Okay, so the family planning is a way of thinking and living adopted voluntarily on the basis of knowledge and attitude. So these words are also important, that they should have knowledge about the method they are going to use for contraception. तो उसके बारे में उनको कंप्लीट जानकारी देने का काम जो होता है वो डॉक्टर का होता है, इसीलिए ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए. सो कपल जो मोटिवेटेड है उन्हीं को ये चीज़ें करनी है. मेल स्टरलाइजेशन इन वेजेक्टोमी. सो मेल स्टरलाइजेशन के लिए जो मेथड यूज होती है दैट इज वेजेक्टोमी. इन दिस मेथड इट इज कस्टमरी टू रिमूव पीस ऑफ वेज डिफरेंस एट द एटलीस्ट 1 सेंटीमीटर आफ्टर क्लैम. जो वेज डिफरेंस होती है उसको 1 सेंटीमीटर तक उसको कट किया जाता है. ये 1 सेंटीमीटर का उसका जो पीस है उसको कट किया जाता है. उसके बाद जो ये दो पीसेस है उनको फोल्ड करके लाइगेट कर दिया जाता है. इसी तरह से अपने आप उनको फोल्ड करके लाइगेट कर दिया जाता है. दैट इज़ द प्रोसीजर. द एंड्स आर लाइगेटेड एंड देन फोल्डेड बैक ऑन देमसेल्व्स एंड sutured इन द पोजीशन सो दैट द कट एंड्स फेस अवे फ्रॉम ईच अदर. दोनों जो कट एंड्स है वो एक दूसरे से दूर होना चाहिए. क्यों? क्योंकि वहाँ पर चांसेस होते हैं रिकैनलाइजेशन के. ऑपरेशन करने के बाद ऐसा हो सकता है कि उसका रिकैनलाइजेशन फिर से हो जाए. ऐसा होता भी है 6% केसेस में. सो उसको अवॉइड करने के लिए उनको मैक्सिमम डिस्टेंस पर रखकर उसको एंड्स को फोल्ड करके लाइगेट कर दिया जाता है. देन इम्पोर्टेंट थिंग, it should be stressed that an acceptor, that is the person on whom the procedure is performed, is not immediately sterile after the operation. उसको ये समझाना ज़रूरी है कि वो तुरंत ऑपरेशन के बाद स्टेराइल नहीं हो जाएगा. उसकी फर्टिलिटी कंटिन्यू रहेगी. कब तक कंटिन्यू रहेगी? अप टू दी 30 ejaculation he will be fertile. So in meanwhile he should have to use the other contraceptive methods. The sperm produced are destroyed intraluminally by phagocytosis. तो क्या होता है, जो ल्यूमेन होता है जिसको हमने कट किया है और लाइगेट किया है, तो वहाँ पे ही ये जो स्पर्म्स है वो ट्रैप हो जाते हैं और वहीं पे वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बाय phagocytosis. So there are certain disadvantages of this method. What are they? The pain, scrotal hematoma and local infections, these are commonly seen after the procedure. स्क्रोटल hematoma और लोकल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं. पेन एंड स्वेलिंग जो होती है दैट इज़ ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ स्पर्म. स्पर्म ग्रैन्यूल्स जो है वो ल्यूमेन में एक्यूमुलेट हो जाते हैं
जिसकी वजह से ये होता है। स्पॉन्टेनियस रिकैनुलाइजेशन जो है 0 to 6% केसेस में हो सकता है। डेवलपमेंट ऑफ ऑटो इम्यूनिटी अगेंस्ट स्पर्म्स, तो ये एक चीज़ ज़रूरी है कि जो हमने वैस डिफरेंस जो है जिसको कट कर दिया है उसमें उसके ल्यूमेन में जो स्पर्म एक्यूमुलेट होंगे उनके लिए बॉडी में ऑटो इम्यूनिटी डेवलप होने के चांसेस होते हैं 2% ऑफ इंडिविजुअल्स में। तो ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है, जो बॉडी जो है अपने ही लिविंग सेल्स को फॉरेन बॉडी समझकर उसको इनगल्फ करने लग जाती है और उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप करने लग जाती है, दैट इज़ द ऑटो इम्यूनिटी। सो ऑटो इम्यून डिसीज यू मे also have heard। तो फिजियोलॉजिकल अदर कॉम्प्लिकेशन इज फिजियोलॉजिकल diminution of sexual vigor, impotence, headache and fatigue. So patient may feel impotent and he himself feels the loss of sexual vigor due to psychological effect। तो उनको लगता है कि इस ऑपरेशन की वजह से उनका विगर कम हो जाएगा, बट दैट इज़ नॉट द केस। सो दिस इज़ द पार्ट ऑफ काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। एडवांटेजेस क्या होते हैं, तो स्पर्म प्रोड्यूस्ड प्रोडक्शन एंड हार्मोन आउटपुट इज़ नॉट अफेक्टेड। ये उनको समझाना ज़रूरी होता है कि स्पर्म प्रोडक्शन और हार्मोन आउटपुट जो है वो इंटैक्ट है, तो उनका जो सेक्सुअल विगर है उसमें कुछ भी कमी नहीं आई है। इट इज़ सिंपल, फास्टर एंड लेस एक्सपेंसिव ऑपरेशन दैन ट्यूबेक्टोमी। जो ट्यूबेक्टोमी होता है उससे ये ईजियर होता है। क्यों? क्योंकि ट्यूबेक्टोमी में जो है जो फैलोपियन ट्यूब है उसको लोकेट करने के लिए पेरिटोनियम को ब्रेक करके उसको वहाँ से लोकेट करना पड़ता है। जो लेप्रोटोमी प्रोसीजर होती है वो उसमें फॉलो करनी पड़ती है। सो इट इज़ मोर सिंपलर दैन दिस ट्यूबेक्टोमी। No scalpel vasectomy is a newer technique that is also safer than previous techniques. So here you can see the anatomy of male genital system. These are vas deferens, which are the cut ends you can see here. Female sterilization, it can be done as an interval procedure during delivery or cesarean or postpartum or at the time of abortion. Female sterilization can be performed. Two procedures have been most common nowadays, which is first one is the laparoscopy and second one is mini laparotomy। laparoscopy या mini laparotomy से इसको परफॉर्म किया जाता है। Here you can see the cut ends of fallopian tube, they are cut and tied। Chances of recanalization are also in this procedure also, okay। देन नेक्स्ट पॉइंट इज इवेल्युएशन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स सो फार हमने देखी है तो उनका इवेल्युएशन कैसे किया जाता है कि ये कितनी इफेक्टिव है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव एफिकेसी इज जनरली असेस्ड बाय मेजरिंग द नंबर ऑफ अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज दैट अकर ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ एक्सपोजर एंड यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। जो भी कोई कॉन्ट्रासेप्टिव की एफिकेसी को काउंट करना है तो स्टडी जो किया जाता है कि उस कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज़ करते हुए एक स्पेसिफिक पीरियड टाइम में कितनी अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज डिटेक्ट होती है, तो उसके आधार पर ये कॉन्ट्रासेप्टिव एफिकेसी नोट की जाती है, कैलकुलेट की जाती है। देर आर टू मेथड्स टू मेजर द कॉन्ट्रासेप्टिव एफिकेसी। पहली जो है वो पर्ल इंडेक्स और दूसरी जो है लाइफ टेबल एनालिसिस। जो पर्ल इंडेक्स है, जैसा कि अभी हमने देखा कि एक स्पेसिफिक पीरियड तक मॉनिटर किया जाता है, तो वो पीरियड जो है पर्ल इंडेक्स में ईयर ऑफ एक्सपोजर कंसिडर किया जाता है कि एक साल का एक्सपोजर अगर 100 वुमेन को दिया जाए किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज़ करते हुए, तो उस कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज़ करते हुए भी कितनी अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज डिटेक्ट होती है, दैट इज़ द फेल्योर रेट ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रासेप्टिव। सो डेफिनेशन इज दैट फेल्योर पर 100 वुमेन ईयर ऑफ एक्सपोजर। सो ये जो है हमने कई जगह देखा होगा अभी तक, पर 100 वुमेन ईयर ऑफ एक्सपोजर ये जनरली यूज़ किया जाता है। देन लाइफ टेबल एनालिसिस जो होता है, इट इज़ कैलकुलेटेड फेल्योर रेट फॉर ईच मंथ ऑफ यूज़। जो
टाइम फ्रेम यहाँ पर कंसिडर की गई है वो 1 मंथ की कंसिडर की गई है, जो कि पर्ल इंडेक्स में 1 ईयर की यूज़ की जाती है। सो हियर वी आर डन विथ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स इन फैमिली प्लानिंग। सो नेक्स्ट जो है डेमोग्राफी और कुछ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के बारे में कुछ चीज़ें हमारी देखनी बाकी है, तो वो हम उसमें देखेंगे। सो हियर वी आर फिनिश्ड विथ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, all contraceptive methods which are asked for 10 marks and 5 marks also. So you should go through it, you should revise it carefully. So okay, thanks for watching.